Hello children, welcome again to your maths class with Poonam Bagga. We are studying class 10th maths, chapter 6 triangles. These days we are doing exercise 6.5 and till now we have completed the first 9 questions from it. Today we will take up question number 10 to 13 from the same exercise. These questions are based on the Pythagoras theorem, which is applicable in case of a right angled triangle where the square of the longest side is equal to the sum of the squares of the other two remaining sides of the triangle. The longest side of a right triangle is also called its hypotenuse. So based on this theorem, we start with question number 10 from exercise 6.5. Here it is. A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meters is 24 meters long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? So here we are talking about one vertical pole. To make it stand, we need a ground level. Let this be the ground level and let this be the vertical pole standing on the ground. Now one guy wire is attached to the vertical pole. इसका मतलब इस पोल के साथ एक रस्सी अटैच की जा रही है. गाय वायर का मतलब एक रस्सी. इस पोल के ऊपरी सिरे से फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल वन गाय वायर इज बीइंग अटैच्ड और गाय वायर के दूसरे सिरे पर एक स्टेक अटैच्ड है. स्टेक का मतलब हुआ एक खूंटा जिसमें पैना हिस्सा होता है जिसे ज़मीन में गाड़ देने से इस पोल को सपोर्ट मिलता है और ये फर्मली होल्ड हो पाता है ग्राउंड के अंदर. सो इन दिस वे वी हैव वन गाय वायर अटैच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोल फ्रॉम हियर एंड द क्वेश्चन इज हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल. ये है बेस ऑफ द पोल. इससे कितनी दूरी पर ये जो स्टेक है दूसरे सिरे पर अटैच्ड है गाय वायर के, कितनी दूरी पर इस पोल से उसे गाड़ा जाए जिससे कि ये जो गाय वायर है ये टॉट रहे. देखिए टॉट का मतलब बिल्कुल तनी रहे, स्ट्रेट रहे, जिससे इस पोल को फर्म सपोर्ट मिले और ये सीधा खड़ा हो सके. आपने देखा होगा किसी फंक्शन में जब टेंट लगाते हैं तो इस तरह से पोल के साथ रस्सी को सपोर्ट लेते हुए एक खूंटा लगाया जाता है और इससे पोल जो है वो फर्मली होल्ड हो पाता है जिससे टेंट बिल्कुल सही बंध पाता है. तो ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है और यहाँ यही बात की जा रही है. लेट दिस बी द पोल, दिस बी द गाय वायर. अब यहाँ पर पोल की आपको हाइट दी गई है 18 मीटर्स. सो दिस इज 18 मीटर्स इन हाइट एंड द लेंथ ऑफ द गाय वायर इट इज़ गिवन 24 मीटर्स. वी गिव द नेम ABC. यहाँ पर हमें ये डिस्टेंस पूछा गया है BC. ये बताना है. समझ में आ रहा है आपको कि बेस ऑफ द पोल से कितनी दूरी पर ये स्टेक लगाया जाए जिससे कि ये जो वायर है बिल्कुल सीधी तनी रहे. ये क्वेश्चन है. नाउ सिंस द पोल इज वर्टिकल दिस एंगल विल बी ऑफ मेजर 90 डिग्री और हमें मिल रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल. बस अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इस अननोन को फाइंड आउट करेंगे. तो पहले यहाँ पर आपको अपने फिगर को डिस्क्राइब करना होगा. लेट AB be the guy wire and AC be the vertical pole. Let us describe it here. Let AC be the vertical pole and AB be the guy wire. Then height of the pole, it is given as 18 meters. This is in the figure AC. This is the pole, 18 meters. Then length of the guy wire, it is AB in the figure and this is equal to 24 meters. Okay, and then distance of the stake attached to the guy wire from the base of the pole. ये जो distance है BC, this is the distance BC of the stake from the base of the pole. Let this be x meters. So we take it to be x meters in length. Next we have to find this x. We take this angle as 90 degree. इसको 90 degree लिखेंगे. We write here in triangle ABC. Angle C is equal to 90 degree as the pole is vertical. ये क्वेश्चन में ही दिया गया है कि पोल वर्टिकल है तो ऐसे में ये एंगल C 90 डिग्री होगा. तो बस अब हम यहाँ आसानी से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. वी राइट ऑन द नेक्स्ट पेज इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम we can easily write square of the longest side. Which is the longest one? This AB. So here we will write AB square. This is equal to AC square plus BC square.
Now AB, it is 24 meters, so 24 square. AC, it is 18 meters long, so here we write 18 square, and this is x, so x square. 24 square, it is 576, this is 324 plus x square. 576 minus 324, this will be equal to x square. 324 को LHS में ट्रांसपोज कर दिया. This implies x square will be equal to, subtract the 2, 6 minus 4 it's 2, then 5 and then 2. For x we will take the square root of 252. इसके लिए 252 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं और उनके पेयर बनाएंगे. So 2 times 1, 2 and here we will have 6. Then again by 2, 6 times, 3 times, this will go 3 times, 3 2s are and 3 1s are. So again 3 7s are and then 7 1s are. So here we have x equal to square root of 2 into 2 into 3 into 3 into 7. You can see the pairs of 2 and 3. 2 और 3 के pairs बन रहे हैं, तो पेयर में से एक एक फैक्टर बाहर ले लेंगे. So this will be 2 into 3, और क्योंकि 7 का पेयर नहीं है तो वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा. एंड सो दिस विल बी इक्वल टू 6 रूट 7. x will be equal to 6 root 7 meters. And so from the base of the pole the stake should be driven 6 root 7 meters away. So we write here the distance of the stake from the base of the pole should be 6 root 7 meters. क्योंकि सभी यूनिट्स मीटर में है तो हमने भी मीटर ही लिया है. So with this we complete question 10. We take now the next question. Question 11. An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 kilometers per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 kilometers per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? So here we have one airport, and from the same airport two planes are going to fly. First plane in the north direction at a speed of 1000 kilometers per hour, and the second plane in the west direction at the speed given here. तो पहले यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है डायरेक्शंस की, तो उन्हीं को ड्रॉ करते हैं और फिर हम इससे रिलेटेड एक फिगर ड्रॉ करेंगे. फॉर दिस वी नीड some space to draw. Let us make it here. And now yes, in this way we will be drawing the directions. We know very well this is the north direction, this is your east, this is your south and this is your west. तो इस तरह से क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्शंस की बात हो रही है तो हमने ये डायरेक्शंस शो किए. अब हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है यहाँ पर हमारा एयरपोर्ट है जिसे हम O से डिनोट करते हैं और यहीं से हमारे दोनों प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं. सो वी टेक द फर्स्ट प्लेन विच इज़ फ्लाइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन. यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मान लीजिए, और 1.5 आवर्स के बाद लेट अस सपोज इट रीचेस दिस पॉइंट हियर. लेट दिस पॉइंट बी A. So in this way the first plane starting from O flying due north, it reaches say point A in 1.5 hours. और अब इसी एयरपोर्ट से उसी टाइम पर एक और प्लेन फ्लाई कर रहा है, दिस टाइम टू द वेस्ट. यहाँ पर मान लीजिए कि वो 1.5 घंटे में इन 1.5 आवर्स पॉइंट बी पर रीच कर रहा है. सो दिस वन इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकेंड प्लेन इन द वेस्ट डायरेक्शन इन 1.5 आवर्स, और वो 1.5 आवर्स में पॉइंट बी पर उसकी पोजिशन है. तो इन दिस केस वी नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस ए बी. ये डिस्टेंस हमें पता करना है कि अब ऐसी स्थिति में जब दोनों 1.5 घंटा फ्लाई कर लिए हैं एयरपोर्ट ओ से, तो अब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये हमारा क्वेश्चन है. आई होप इट इज़ क्लियर. और अब यहाँ पर फिर से आपको पता होना चाहिए दिस एंगल इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री. यहाँ पर हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे. कैसे मिलेगा हमें, देखिए स्पीड दी गई है फर्स्ट वन
इसकी स्पीड दी गई है 1000 किलोमीटर्स पर आवर, देखिए, और सेकेंड वन इट इज़ 1200 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस मिल जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और फिर हम यहाँ पर जब हमें ये दोनों ही डिस्टेंसेस मिल जाएंगे OA और OB, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और ये डिस्टेंस AB फाइंड आउट करेंगे। सो वी नाउ टेक द नेक्स्ट पेज and describe our figure and then we will write everything fairly. Solution. In the figure, let point O denote the airport from where the first plane flying due north reaches point A in 1.5 hours. तो इस तरह से पहले आप अपने फिगर को डिस्क्राइब करेंगे और फिर let the second plane flying due west reach point B in 1.5 hours. ठीक है, 1.5 घंटे में फर्स्ट प्लेन पॉइंट A पर पहुंचा और सेकेंड प्लेन पॉइंट B पर पहुंचा। Speed of the first aeroplane, it is given as 1000 kilometers per hour. Speed of the second aeroplane, it is given as 1200 kilometers per hour. Now distance covered by the first aeroplane, distance कैसे मिलता है? It is equal to speed into time. So here we have speed as 1000 and what is the time? 1.5 hours. इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 2 1s are 2 plus 1 it will be 3/2. So 1000 into 3/2, cancel it, it will go 5 and then 00, it will be 1500 kilometers. This is your distance OA. इसी तरह से आप फाइंड आउट करेंगे distance covered by the second plane OB. It is equal to again speed into time. Speed है आपकी 1200 and then time is again 3/2 hours. Cancel it, it will go 600 times. This is equal to 1800 kilometers. So now in the figure we have this distance as 1500 kilometers OA and this distance is 1800 kilometers. और ये एंगल हमारा है 90 डिग्री. Getting it? So we write now in triangle AOB, angle O is equal to 90 degree. This implies, now which is the hypotenuse here? Opposite to the 90 degree angle. It is AB, so we can write AB square, this is equal to OA square plus OB square. You can give the reason by Pythagoras theorem. I hope it's now clear and easy for you all. From here AB we have to find it, so it will be AB square. OA हमें मिला है 1500, so 1500 square and this is 1800 square. 15 square it is 225 और 0 डबल हो जाएंगे, 4 zeros will be there. यहाँ पर 18 square it is 324 and then 4 zeros. Add the 2, it will be 9, then 4 and 5. And then 1 2 3 4. So actually it is 54,90,000 and now this is equal to AB square. अब AB कैसे मिलेगा? We need to find its square root. 549 and 4 times zeros. This can be written as 549 into 100 into 100. ये जो 10,000 है साथ में मल्टीप्लाइड, इसको हमने इस तरह से स्प्लिट कर दिया और क्योंकि अब 100 का पेयर बन रहा है ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से एंड सो दिस विल बी नाउ 100 रूट 549. 549 के भी फैक्टर्स करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कोई फैक्टर पेयर फॉर्म में मिल रहा है. 549 वी शुड डिवाइड बाय, लेट अस ऐड द डिजिट्स, 9 and 4 13 and 5 18, तो 3 से डिविजिबल है. वी टेक 3, 3 1s are 3, 24, 8 times 24, 3 3s are 9, again by 3, 3 6s are 18, 3 1s are 3. Now 61 is a prime number, so it will go 61 1 times and so here we can write as 100 square root 3 into 3 into 61. ये आपका रफ पार्ट है, यू कैन रिमूव दिस एंड नाउ वी आर हैविंग 3 इन पेयर फॉर्म, तो 3 को भी बाहर ले लीजिए. 100 into 3 और ये रूट 61 अंदर ही रहेगा. सो दिस इज इक्वल टू 300 रूट 61
and this will be in kilometers because all the units are in kilometers. और ये क्या है actually? दोनों planes के बीच का distance after 1.5 hours. So now we can write here, this implies the distance between the two planes, after 1.5 hours is 300 root 61 kilometers. With this we complete question 11. We next take question 12. Two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. यहाँ पर अब two poles they are standing on plain ground. तो चलिए साथ साथ फिगर भी बना लेते हैं. Let this be the ground. और अब दो पोल हैं, एक 6 meters high, एक 11 meters. So let this one be 6 meters high and let this one be 11 meters high. Next, if the distance between the feet of the poles is 12 meters, find the distance between their tops. तो अब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया है 12 मीटर्स. तो अब हमें यहाँ पर इनके टॉप्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है. दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स. दिस इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन. ये है आपका फर्स्ट पोल. लेट इट बी इन नेम ए बी और इसकी हाइट है 6 मीटर्स. लेट दिस बी सी डी द सेकेंड पोल और इसकी हाइट आपको दी है 11 मीटर्स और इनके बीच में हमें डिस्टेंस दिया गया है इनके फीट के बीच में 12 मीटर्स. तो ये हो गया बी डी 12 मीटर्स. और अब हमसे ये डिस्टेंस पूछा है ए सी जो कि इनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस है. ये हमसे पूछा गया है. अब यहाँ पर क्योंकि पोल्स बिल्कुल सीधे खड़े हैं तो ये एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, ऑब्वियस है ये. पर ऐसा करने से हमें कोई भी राइट ट्रायंगल नहीं मिल रहा है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पाएँ. और इसके लिए हमें यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है. अगर हम ए से एक लाइन ड्रॉ करें बी डी के पैरेलल तो वो यहाँ पर सी डी को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगी और ऐसे में हमें एक राइट ट्रायंगल मिल जाएगा. लेट अस फर्स्ट ड्रॉ इट. ए से एक ड्रॉ कीजिए पैरेलल टू बी डी इस तरह से. लेट इट बी पॉइंट ई. और अब आप देखिए क्योंकि ये पैरेलल है तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा और ऐसे में हमें एक राइट ट्रायंगल मिल रहा है. अब क्योंकि ये 12 मीटर्स है तो ये भी 12 मीटर्स होगा. आप फिगर में देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और यहाँ सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं. तो ये एक रेक्टेंगल हो गया बी डी ई ए. ये एक रेक्टेंगल है तो ये 12 मीटर्स है तो ये भी 12 मीटर्स होगा. इसी तरह से ये ए बी 6 मीटर्स है तो यहाँ से ई डी भी आपका 6 मीटर्स होगा. और अब क्योंकि ये कंप्लीट लेंथ 11 मीटर्स है तो 11 माइनस 6 करने से हमें ये लेंथ मिल जाएगी 5 मीटर्स. ये बात समझ में आ रही है आपको? तो अब यहाँ पर ये 5 मीटर्स है, ये 12 मीटर्स है, ये 90 डिग्री है. इजीली हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये डिस्टेंस x फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन द टॉप्स ऑफ द टू पोल्स. द क्वेश्चन इज क्लियर. वी नाउ फर्स्ट डिस्क्राइब आवर फिगर एंड देन वी विल सॉल्व इट. वी टेक हियर solution. Let AB and CD be two poles of height 6 meters and 11 meters respectively. ये देख लीजिए आप फिगर में दिया हुआ है. Distance between the two poles, it is given as BD equal to 12 meters. ये आपको 12 meters दिया है. This is 6 meters and this complete length it is 11 meters till this point D. ठीक है, यहाँ C से D तक. नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ द टू पोल्स. ये हो गए टॉप A और C. इनके बीच का डिस्टेंस हो गया AC और इसको हम मान लेते हैं x मीटर्स. से का मतलब हम इसे मान रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट वी विल ड्रॉ AE पैरेलल टू BD. ये आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से. ये फिगर में नहीं दिया था, हमने खुद इसे बनाया है. और ऐसा करने से फ्रॉम द फिगर it is clear that BD is equal to AE is equal to 12 meters. पहली बात तो ये 12 meters है तो ये भी 12 meters हो गया.
ऑल्सो AB, दिस इज इक्वल टू ED, दिस इज इक्वल टू 6 मीटर्स. ये 6 मीटर्स है, तो यहाँ से लेकर ये पूरी लेंथ ये भी आपकी 6 मीटर्स हो गई. और ऐसे में नाउ दिस इम्प्लाइज CE, दिस विल बी इक्वल टू CD माइनस ED. ये समझ रहे हैं आप? ये ऊपर वाली जो हाइट है CE, ये कैसे मिलेगी? पूरी CD में से ये ED माइनस कर दीजिए. दिस इज इक्वल टू 11 माइनस 6 इक्वल टू 5 मीटर्स. तो दिस इम्प्लाइज दैट CE इज इक्वल टू 5 मीटर्स. दिस इज क्लियर? 5 मीटर्स दिस CE. यहाँ से ये E तक, यहाँ तक ये 5 मीटर्स है हाइट. यहाँ तक C से आप देखेंगे E तक ये डिस्टेंस आपका 5 मीटर्स है. आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर. नेक्स्ट नाउ वी विल टेक ट्राइंगल AEC. ये आपका 90 डिग्री एंगल हो गया, क्योंकि पोल्स जो होते हैं वो सीधे ही खड़े होते हैं. सो दिस इज़ 90 डिग्री एंगल. और अब हम यहाँ पर इसको x मान ही लिया है. इस ट्राइंगल में AEC में अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और फिर हमें अननोन वैल्यू मिल जाएगी. वी टेक द नेक्स्ट पेज हियर. वी राइट हियर in triangle ACE, angle AEC is equal to 90 डिग्री. देखिए आप, एंगल AEC ये 90 डिग्री है ही, ये एंगल इसी की बात हो रही है. और अब आप इजीली लिख सकते हैं AC स्क्वायर, ये लॉन्गेस्ट साइड होगी. सो हियर वी राइट दिस इम्प्लाइज AC स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस हियर वी हैव CE स्क्वायर. नाउ AC we have taken it to be x, so x square. AE, have a look, it is 12 meters, so here we will write 12 square, plus here we will write CE, it is 5 meters in height, so here 5 square. This is now equal to 144 plus 25, this is equal to 169 x square. From here x will be square root of 169 and so x will be equal to 13 meters. और x क्या है? Distance between the tops of the two poles, and so here we can write hence the distance between the tops of the two poles is 13 meters. Okay, next we have here question 13. D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at point C. Prove that this result we have to prove. यहाँ बात हो रही है एक राइट एंगल ट्राइंगल की, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में दिया है पहले हम इसे ड्रॉ करेंगे तभी ये क्लियरली हमें समझ में आएगा. सो फर्स्ट वी ड्रॉ वन राइट एंगल्ड ट्राइंगल. लेट दिस बी राइट एंगल्ड ट्राइंगल. यहाँ दिया है राइट एंगल्ड एट C, तो ये जो पॉइंट है राइट एंगल वाला यहाँ पर C लिखना है. बाकी आप A और B कहीं भी लिख लीजिए, ये C होना ही चाहिए. आप चाहें तो A यहाँ लीजिए, B यहाँ लीजिए, या आप चाहें तो यहाँ A लीजिए और यहाँ B लीजिए, आपकी मर्जी है. आई एम टेकिंग इट एज A, B एंड देन C हियर. दिस इज 90 डिग्री एंगल. ठीक है. नाउ D इज अ पॉइंट ऑन साइड AC. ये है साइड AC और यहाँ पर एक पॉइंट है D, कोई भी पॉइंट ले लीजिए D. फिर इसी तरह से E है एक पॉइंट ऑन साइड CB, तो यहाँ CB पे एक पॉइंट E ले लीजिए. लेट दिस बी पॉइंट E एंड देन वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट AE स्क्वायर BD स्क्वायर. तो AE हमें यहाँ पर A और E को ज्वाइन करना होगा. AE इसको ज्वाइन कर लिया हमने, और ऐसे ही BD की बात हो रही है तो B और D को भी हम ज्वाइन करेंगे समथिंग इन दिस वे. और फिर AB स्क्वायर, दिस इज AB स्क्वायर AB एंड देन DE स्क्वायर. DE हमें ज्वाइन करना होगा. सो हियर वी राइट join them in this way. Okay, this is the figure related to this question. Now what we have to prove? AE square plus BD square. तो AE को फोकस कीजिए. AE ये है साइड AE. इसमें आप देखेंगे ट्राइंगल ACE में ये एंगल तो 90 डिग्री है
और ये इसके ऑपोजिट है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हम जब इस ट्रायंगल की बात करेंगे ACE ट्रायंगल की, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा AE स्क्वायर के लिए, फिर हमें चाहिए BD स्क्वायर। तो ऐसे में BD आप देख सकते हैं ये लाइन सेगमेंट है, और यहाँ पर अगर हम अब ये ट्रायंगल लें, ये ट्रायंगल दिस वन, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और BD इसका हाइपोटेन्यूस है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा BD स्क्वायर के लिए। और अब हम दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे जैसा कि क्वेश्चन में चाहिए, और फिर देखते हैं कि क्या हमें RHS मिलता है या नहीं। तो अब हम पहले क्या लिखेंगे, वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन वॉट वी हैव टू प्रूव, एंड देन वी विल स्टार्ट। हियर वी राइट गिवन D and E are points on side CA and CB respectively of triangle ABC right angled at C। जो गिवन पार्ट है वो आप क्वेश्चन से ले सकते हैं या अपने वर्ड्स में इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। देन वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। वी स्टार्ट द प्रूफ। सबसे पहले AE स्क्वायर के लिए हम ट्रायंगल लेंगे दिस वन AEC। वी टेक दिस वन इन ट्रायंगल AEC। एंगल C is equal to 90 degree. This is given, angle C is 90 degree. ये दिया हुआ है, and so by Pythagoras theorem we can write one expression for AE square. This will be equal to AC square plus CE square. ये आपका फर्स्ट रिजल्ट हो गया। गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है आपको? हमने यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूस ले लिया AE, इसका स्क्वायर किया, AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू रिमेनिंग साइड्स। वही अप्लाई कर रहे हैं हम। नाउ वी नीड टू टेक BD स्क्वायर। इसके लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, आप समझ ही रहे होंगे, दिस वन BD स्क्वायर के लिए अब हम ये ट्राइंगल लेने वाले हैं, रेड वाला। सो वी राइट हियर नाउ इन ट्राइंगल, गिव इट द नेम CDB. We have BD square. This will be equal to, from here we have DC, so DC square plus here we have BC or CB, you can write it anyways, CB square. DC square plus CB square. DC square plus CB square. This is equal to BD square. Let this be the second result. Now we will be adding these two, क्योंकि हमें AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर चाहिए, तो हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे, जिससे हमारे पास LHS में ऐड करने पर वही पार्ट आ जाएगा जो हमें प्रूव करना है, उसका LHS पार्ट। सो वी टेक द नेक्स्ट पेज, एडिंग 1 and 2, we get, let us see what we get here, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, LHS पार्ट्स को ऐड करने पर AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और अब DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। सो वी राइट हियर DC स्क्वायर प्लस CB और BC, इट्स द सेम थिंग, BC स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर AC स्क्वायर BC स्क्वायर, AC और BC ये हैं ओरिजिनल ट्राइंगल की साइड्स, दिस इज AC एंड दिस इज BC, और क्योंकि एंगल C 90 डिग्री है तो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ दिस लॉन्गेस्ट साइड AB, सो AB स्क्वायर के इक्वल होगा। सो वी नाउ टेक देम टुगेदर, वी राइट हियर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इनको ग्रुप कर दिया और रिमेनिंग एक साथ लिख दिए CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, इनको एक साथ कर दिया। नाउ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हम देख ही रहे हैं, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू AB square. Give the reason. Since AC square plus BC square is equal to AB square in right triangle ABC. एक तो ये बात हो गई, और अब आप देखिए यहाँ पर CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, CE, एक बार इसको हाईलाइट करते हैं, CE, दिस इज योर CE एंड देन DC, this one
इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, और ये भी तो साइड्स किसकी है, राइट ट्रायंगल की, तो इन दोनों के स्क्वायर्स का सम होगा इक्वल टू दिस DE स्क्वायर. सो हियर इन प्लेस ऑफ दीज टू वी कैन राइट नाउ DE square. Again give the reason, since in right triangle DCE we have DC square plus CE square equal to DE square. ये रीज़न हो गया, और ऐसे में हमारे पास ये वही रिजल्ट आ गया जो एक्चुअली हमें प्रूव करना था. AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, देखिए आप, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर यही तो लाना था, और वही हमें यहाँ पर मिल रहा है. रीज़न क्या है, देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तो बड़े ट्रायंगल में इनका सम इक्वल है AB स्क्वायर के, और यहाँ ये रेड ट्रायंगल में इन दोनों का सम आपका आ रहा है इक्वल टू DE स्क्वायर, और ऐसे में ये वही रिजल्ट आ गया जो हमें प्रूव करना था. So here we can indicate this, and hence the required result is proved. You can give these reasons along with the main part that you have written. इनको bracket में आप reason लिख सकते हैं. With this we complete question number 10 to 13 from exercise 6.5. I hope all these questions you have understood well, and now practice them once again on your own. Goodbye for now.